Okay. So first of all, I welcome all of you. And just a brief introduction about me. My name is Sanket Jain. I've been mentoring the students of psychology from last 8 years. I've started this platform, Psyche Simplified, in 2018. Initially, we were providing course in online mode, but we started our offline classes also from last year. From last 3 to 4 years, we are giving best result in psychology. This year also, Bhuvneshwar Ram, he has received 41, all India rank 41 and highest marks in psychology. Last year, Manasvi Sharma, he also achieved highest marks in psychology. Last year, Anushka, she also received highest marks in psychology. So therefore, we think about that we should excel our program to maximum students. So now we are offering offline classes also. We are providing online classes from last 3 years. We have a good capacity of students in online batch. From last year, we started on offline also. So today, it is just a orientation session. It is just about we need to focus upon these 5 to 6 points. I just want that after finishing of this session, all of you clear with these 4 to 5 points. ये 5 से 6 पॉइंट आप सबके माइंड में क्लियर होने चाहिए. पहला, that what you are going to study in psychology. आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे क्या? There might be some students among us जिन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया होगा कि whether they should opt for psychology or not. Okay, so I would also try to clear their doubt also with some basic understanding about the subject कि इस subject में आपको पढ़ना क्या है. ठीक है. आफ्टर गेटिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि साइकोलॉजी में पढ़ना क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या होता है साइकोलॉजी की तैयारी के लिए, क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या सोर्सेस आप फॉलो कर सकते हो, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या होती है, साइकोलॉजी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन GS4 एंड इन एसए, और व्हाट इज द रोल ऑफ करंट अफेयर्स इन साइकोलॉजी. ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड I have come upon these points after interacting with lot of toppers. I have interacted with this year topper also, Manasvi also, Anushka also, and by interacting with all these toppers, I have collected some important points. I have collected some important resources which will help you to prepare psychology. Okay, so let's start. Okay, so we admit all the online students also. After this, there will be no entry of online students. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि हमें साइकोलॉजी में पढ़ना क्या है और हमें इसको कब तक खत्म करना है. ठीक है. और सी, जब भी आप साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा साइकोलॉजी इज द स्टडी. ठीक है. इसमें दो चीजों पे इंपॉर्टेंट फोकस किया जाता है. एक तो आपका माइंड और एक आपका बिहेवियर. First one is your mind and second is your behavior. Now, psychology, अगर आप देखेंगे साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री. साइकोलॉजी का अगर आप ओरिजिन देखेंगे, साइकोलॉजी वाज नॉट स्टडीड एज साइकोलॉजी. इनिशियली इट वाज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. पहले के टाइम पर हम इसको फिलॉसफी के अंदर पढ़ते थे. ओके, साइकोलॉजी बिकम अ सेपरेट डिसिपल इन 1879. Okay, so in 1879, psychology started. We started study psychology as a separate discipline, okay, as a scientific study. Before this, it was considered as a part of philosophy. Okay, so there were so many controversies, there were so many debate about that what should be the subject matter of psychology. हमें psychology में पढ़ना क्या है? What should be the subject matter of psychology? So there used to be a lot of debate. काफी debate हुई इसको लेकर कि क्या हमें पढ़ना है? Whether we should focus upon mind, whether we should focus upon the behavior of the individual, or we can say हमें क्या बॉडी पे फोकस करना है या हमें माइंड पे फोकस करना है. ये सारी डिबेट चलती गई. इट्स अ लॉन्ग डिबेट, माइंड वर्सेस बॉडी. Okay, a debate between nature versus nurture, whether genes are important, whether environment is important. So it's a long debate which keep on running in the field of psychology. Okay, so starting में अभी तक तो इसको हम पढ़ ही नहीं रहे थे, साइकोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से पढ़ ही नहीं रहे थे. पहले समझा जाता था कि साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी हैज आल्सो इमर्ज्ड सम ऑफ इट्स टॉपिक फ्रॉम फिजियोलॉजी. ऐसा भी कहा जाता है कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ साइकोलॉजी and physiology is the father of psychology. Okay, so in the initial phase, psychology एक separate discipline था ही नहीं. Okay, but later on, after some time,
when various people come forward, for example, William James, William Wundt. Okay, so they separated psychology from the branch of philosophy and from the branch of physiology. And in 1879, psychology has been started as a study of mind and as a study of behavior. ठीक है, तो अब क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें साइकोलॉजी में क्या करना चाहिए, हमें वी शुड फोकस अपॉन ओनली द कंसेप्ट ऑफ माइंड, दैट माइंड इज ओनली इंपॉर्टेंट. ओके, क्या है, सिर्फ माइंड इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अब माइंड से मतलब क्या हो गया, माइंड यू कैन से योर कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस. ठीक है, जैसे आप अभी मेरे को सुन पा रहे हैं, सो यू आर कंप्लीटली अवेयर, यू आर इन द क्लास. ओके, सो दिस इज योर माइंड. Now, what is behavior? Which you will manifest. You are talking, you are learning, you are eating, you are singing. These all your behaviors. So initially, when psychology get itself separated from philosophy and physiology after 1879, psychology को study of mind और study of behavior की तरह पढ़ा गया. ठीक है ना, कुछ लोगों ने बोला कि हम सिर्फ माइंड को स्टडी करेंगे, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हम माइंड को स्टडी नहीं करेंगे, हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे. तो एक लॉन्ग डिबेट थी, चलती गई चलती गई चलती गई. जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ माइंड पे फोकस किया विलियम वुंड ने, बिहेवियर पे फोकस किया वॉटसन ने. ठीक है, ओके, तो ये डिबेट चलती गई. बाद में इन लोगों ने क्या किया, इसको इंटरप्ले कर दिया. दे कम एट द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टडी साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर बोथ. तो फिर ये दोनों लोग साथ में आ जाते हैं. ठीक है, और बोलते हैं कि हमें साइकोलॉजी को माइंड और बिहेवियर, हमें साइकोलॉजी में माइंड एंड बिहेवियर दोनों को पढ़ना है. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि साइकोलॉजी को हम सिर्फ माइंड की तरह पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं करना कि हम साइकोलॉजी में सिर्फ बिहेवियर के बारे में देखेंगे. ओके, इन साइकोलॉजी वी विल डू द स्टडी ऑफ माइंड एंड वी विल स्टडी ऑफ बिहेवियर आल्सो. ओके, नाउ कैसे हम करेंगे, हाउ यू विल स्टडी द साइंस ऑफ माइंड, आप माइंड को कैसे पढ़ेंगे, आप बिहेवियर को कैसे पढ़ेंगे. तो इसके लिए इसके बाद कुछ मेथड का इमरजेंस हुआ, कुछ मेथड निकाले गए. अब मेथड क्यों निकाले गए, तो आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए किसी के बिहेवियर को पढ़ना है, तो बिहेवियर को तो कोई भी पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब जैसे आप कुछ मेरे को देख रहे हैं या मैं कुछ लर्निंग कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये बिहेवियर तो हुआ मेरा. ठीक है ना, तो लोग डेली बेसिस पे भी बिहेवियर को पढ़ते हैं, बिहेवियर के बारे में समझते हैं और अपनी थ्योरी को डेवलप करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने काफी सारे कॉमन सेंस देखे होंगे, है ना, जैसे आपने काफी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि अपोजिट अट्रैक्ट, सुना है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं. तो फिर क्या होता है, दे गो इनटू द रिलेशनशिप. Okay, so what we are saying, opposite attract, that is why they are in the relationship. Okay, but what happen after they got divorced after some time? तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अपोजिट अट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा सिमिलर एटीट्यूड के लोगों को साथ में रहना चाहिए. तो फिर इसकी स्टडी की गई, है ना. तो ये तो जो हमने कॉमन सेंस की बेसिस पे बोल दिया, लेकिन जब इस कॉमन सेंस की साइंटिफिक स्टडी होती है, जब इस बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी होती है, तो उसको हम साइकोलॉजी में गिनते हैं. ठीक है, तो जी जो हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ बिहेवियर, जब इन दोनों चीजों की साइंटिफिक स्टडी होगी तो उसको बोला जाएगा साइकोलॉजी. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से हम बिहेवियर और माइंड के बारे में पढ़ेंगे फिर तो नॉर्मल लोग हो गए, सारे के सारे लोग हो गए. फिर साइकोलॉजिस्ट ने अलग क्या किया, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर माइंड एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर बिहेवियर with the help of certain methods. Now, what are those methods? उन methods को हम पढ़ेंगे अपने chapters में. जैसे research method होते हैं, observation होता है, introspection होता है, natural observation होता है, तो वो हमारे subsequent chapters में आते जाएंगे. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें साइकोलॉजी में पढ़ना क्या होता है. आपने सुना होगा कई जगह कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ योर माइंड एंड योर बिहेवियर. लेकिन ये निकल के कहां से आया, ये निकल के आया यहाँ से. पहले फिलोसफी था, फिजियोलॉजी था, उसके बाद एक डिबेट चल दी गई कि माइंड को पढ़ना है या बिहेवियर है, आपके बॉडी को देखना है. कुछ लोगों ने बोला कि सिर्फ माइंड पे फोकस करो, माइंड यानी कि आपका कॉन्शियसनेस, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका परसेप्शन. ओके, दिस इज योर माइंड अबाउट. कुछ लोगों ने बोला कि आपकी बॉडी, आपके बिहेवियर पे फोकस करो. ठीक है, फिर बाद में दोनों लोग साथ में आते हैं और बोलते हैं कि इट शुड बी द इंटरप्ले ऑफ योर माइंड एंड बिहेवियर. ठीक है, और इनको पढ़ने के लिए हम कुछ साइंटिफिक स्टडी को करते हैं, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी भी एक तरीके से साइंस है. Psychology is also a science because in science also we use scientific method and in psychology also we are using some scientific method. ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या हो गई, एक तरीके की साइंस हो गई. ठीक है ना. इसके बाद जब हमने बोला साइकोलॉजी एक साइंस होती है, उसके बाद साइकोलॉजी का इमर्जेंस होता गया. ओके, क्योंकि देखिए हमारा जो बिहेवियर है, अवर बिहेवियर गेट इवॉल्व. ओके,
So what your behavior today is, it will not be the same tomorrow. Okay, our society is evolving. So there are different issues which keep on emerging on daily basis. There are different debate which keep on emerging on regular basis. ठीक है, इसके बाद after this there were several branches of psychology. There were emergence of several branches of psychology. For example, there is one branch which is known as developmental psychology, which specifically focus upon the developmental part. Okay, which specifically focus upon that how human being develop cognitively, emotionally, and socially. So therefore, there is a chapter development of human behavior. Then there is an emergence of branch which is known as cognitive psychology. Therefore, there are chapters in our syllabus like thinking, problem solving, okay, perception is there, learning, memory, these chapters are there. Then there is the emergence of personality psychology. Okay, so chapters like personality is there. Okay, so these are the different fields of psychology. Okay, इस तरह से आगे बढ़ता गया. Okay, now we can say that psychology is a science and psychology is a profession also. लोग as a profession भी तो psychology को adopt करते हैं. So they use the concept of psychology in the society also, in application part also. ठीक है, तो जब सोसाइटी की बेसिस से बात करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वो अप्लाइड साइकोलॉजी हो जाएगी. So in applied psychology you will see, we see the different branches of psychology in the society. For example, education psychology is there. Okay, for example, there is a separate branch, social psychology is there, rehab psychology is there, which we will study in paper 2. Okay, paper 2 is all about applied psychology. Okay, so psychology is being studied as a science also. Psychology is being studied as it is applied in different branches also. ठीक है, तो ये हमारे पेपर 1 के टॉपिक्स हो जाते हैं. जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू. लेंथ तो काफी 12 चैप्टर पेपर 1 में है, 12 चैप्टर के पेपर 2 में है. और in paper 2 we will focus upon the application part. Okay, so paper 1 is theoretical part. You will find the chapters like learning, memory, thinking, personality, sensation, attention, perception, issues and perspective in 21st century. Okay, language and communication. And in paper 2 you will find the application part in the form of education psychology, rehab psychology, mental disorders is there, consumer psychology, organizational psychology, work psychology. तो ऐसे हमारे पेपर 1 पेपर 2 को कंबाइन किया गया. ठीक है, तो आई थिंक एक ब्रीफ समझ में आया आपको कि क्या हमें इसको पढ़ना है. तो हमें साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी हमें माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करनी है. अब बिहेवियर इवॉल्व होता गया, अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस कीप ऑन इमर्जिंग, कीप ऑन इवॉल्विंग. Okay, so I hope the point is clear that what we are going to study in the domain of psychology. Okay, so it is just brief overview. We will see each and everything in detail also. So subject matter I think is clear. ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर है, ये आपको क्लियर हो गया. नाउ व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू प्रिपेयर साइकोलॉजी. ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. ओके, नाउ अप्रोच, नाउ अगेन आई एम सेइंग दिस आफ्टर इंटरेक्टिंग विद मेनी टॉपर्स दैट बिफोर प्रीलिम्स, ओके, आई एम होपिंग दैट you were preparing for 2025. So before prelims, complete syllabus must be finished along with notes making. Along with notes making, आपका पूरा सिलेबस फिनिश होना चाहिए along with notes making. Some students are admitting. Let me. ठीक है, तो क्या करना है आपको, प्रीलिम्स 2025 तक आपको पूरा अपना सिलेबस खत्म करना है along with notes making. Now the most important thing in psychology is revision. किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसका रिवीजन. और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए आपने मैथमेटिकल ऑप्शन लिया, तो उसमें फॉर्मूले होते हैं, वो आपने एक बार याद कर लिए तो वो हमें याद रहते हैं. ठीक है, वी विल नॉट फॉरगेट देम. बट इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अगेन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट विल हेल्प यू इन दिस, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ोगे कि आप किसी चीज को लर्न कैसे करते हो, मेमोराइज कैसे करते हो. ओके, इन दैट फील्ड देयर इज वन इंपॉर्टेंट नेम इन साइकोलॉजी. हिज नेम इज एबिंगॉस, हर्मन एबिंगॉस. तो उन्होंने बताया था कि हमारी क्या होती है, फॉरगेटिंग कर्व होती है. whatever you are going to study, you will forget everything in just 1 hour.
70% of that information will vanish in 1 hour. Okay, so and in one day 80 to 85% will lost. So what you need to do, you need to do revision. Now that revision should be done in 3 phases. The first phase that you should revise on daily basis. आप daily basis पर revise करेंगे. You should revise on weekly basis और monthly basis. आपका ये रिवीजन का पूरा शेड्यूल होना चाहिए. ठीक है. So whatever you are going to read, try to write at least one answers on that particular topic. जैसे मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, तो उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन लिख लो डेली बेसिस पर, तो ये काम हो गया आपका. वीक में आप कोई भी डिस्कशन कर लो अपने दोस्तों के साथ में. ओके, और यू कैन डिस्कस विद योरसेल्फ आल्सो, यू कैन डिस्कस विद द फैकल्टी आल्सो. तो ये आपका वीकली रिवीजन हो गया. मंथली रिवीजन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज. ठीक है, आप टेस्ट दे दीजिए, जो भी आपने मंथ में पढ़ा है आप उस टेस्ट को कर दो, तो आपका वहां से मंथली रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप साइकोलॉजी, आप जीएस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपने कुछ मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक हफ्ते पहले द हिंदू में कोई भी आर्टिकल पढ़ा, यू हैव रीड सम आर्टिकल इन द हिंदू. आई डोंट थिंक यू रिमेंबर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द टॉपिक जो आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था, वो आप भूल गए होगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द रिवीजन ऑन रेगुलर बेसिस. दैट इज द ओनली की. ओके, सो इन साइकोलॉजी आल्सो वी विल डू द सेम थिंग. डेली बेसिस पर रिवाइज करेंगे, वीकली बेसिस पर रिवाइज करेंगे और मंथली बेसिस पर भी रिवाइज करेंगे. ऑन डेली बेसिस वी गिव वी लाइक कंडक्ट आंसर राइटिंग ऑन रेगुलर बेसिस. जो भी आप क्लास से पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन लिखने को मिलेगा, तो ये काम वहां से हो गया. वी कंडक्ट क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आर रिजर्व फॉर डाउट सेशन. ठीक है, तो ये वीक वाला रिवाइज हो गया. हर 4 चैप्टर के बाद हमारा एक टेस्ट होता है. ठीक है, तो ये मंथली वाला काम हो. तीनों काम हो गए. ठीक है, डेली बेसिस पर रिवाइज किया, एक क्वेश्चन लिखा. वीक का वीकेंड पे डिस्कशन किया, डाउट सेशन वहां से खत्म हो गया. मंथली एक टेस्ट दिया, वहां से खत्म हो गया. आई विल शो यू द शेड्यूल आल्सो, तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा. ओके, ठीक है, तो ये बातें हमको इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये सब फॉलो होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए पेपर 1 पेपर 2 का. ठीक है, सिलेबस के सब टॉपिक यू मस्ट नो ईच एंड ईच सब टॉपिक ऑफ द सिलेबस. व्हाट इज देयर इन द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज देयर इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या है, लैंग्वेज में क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए. Syllabus is the most important part. Okay. Now, what you will do, you will do the analysis of PYQ. अगला काम आप क्या करेंगे, PYQ को एनालाइज करेंगे. ठीक है, अभी तक आपने किया PYQ एनालाइज? अभी किया? कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कितने ईयर के देखे, लास्ट ईयर का देखा था? अच्छा देखो, टेलीग्राम पे मैंने एनालिसिस कर रखा है पास्ट ईयर, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये अपने पास ही है. तो ये 2023 का पेपर है, नहीं 2021 के भी क्वेश्चन है एंड 2023 के क्वेश्चंस भी हैं. हाँ, so when you will analyze the PYQ, you will find that 70 to 80% questions are repeated. Okay, and they are exactly repeated. Okay, language यहाँ पे चेंज नहीं होती. तो ये आपको एनालिसिस कहीं भी नहीं मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल there was a question in 2021, describe the bottom up and top down processing of sensory information. This question came in 2021. Okay, same question in 2011, contrast bottom up and top down processing theories of perception. Same question है. ठीक है, so they are exactly repeating the PYQ. And the biggest mistake which we are doing when prepare psychology, that we are not even analyzing them. हम उनको एनालाइज ही नहीं करते, तो काम खराब हो जाता है. In the same way, you will see 2023 last year paper discuss formation of stereotype and prejudices with the help of tutorial example. Same 2019, sorry, stereotypes can lead to development of prejudices. Same thing. Okay, same thing is repeating again. 2023 paper example, explain Bandura's theory for understanding criminal behavior. It is in paper 2. Okay, same question, review Bandura's social learning theory and evaluate its impact on understanding aggression as a result of media generated volumes. Okay, so exactly same questions are repeating each and every year. This is just a sample. I have just collected some sample of 3 to 4 questions. We have done the complete analysis also. पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा, वो पीडीएफ में ही पड़ा हुआ है ग्रुप में टेलीग्राम पर. तो वहां पर आप एक बार पहले इसको हम देखेंगे. वी विल डू दिस. ओके, कि कैसे क्वेश्चंस बीट हो रहा है. आफ्टर दिस वी विल डू, ओके, यू कैन आल्सो सी हियर द सेम थिंग. This is the analysis. Okay, so this is the analysis of 2023.
Okay, discuss the factor facilitating in problem solving. Same question come in 2015. What are the general strategies used in problem solving? How do these differ from domain specific procedure? Okay, so exactly questions are repeating. Okay, factors influencing perceptual organization 2023. What principle of perceptual organization are useful? Okay, so exactly same questions are repeating every year. So this is paper 1 and this is paper 2 analysis of 2023. We have done the analysis of last 3 years paper in the same basis. आप उसको देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पीवाईक्यू में क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना? ओके, तो ये पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिलेबस को देखा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पीवाईक्यू एनालाइज की। ओके, नाउ you know that कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। नाउ यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द रिसोर्सेज यू नीड टू फॉलो। ओके, नाउ अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, कोई भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होता है तो उसमें किताबें बहुत होती हैं। ओके, देयर इज नो लिमिट एंड देयर इज नो बुक विच इज मेड बाय कीपिंग यूपीएससी इन व्यू। कोई भी किताब यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनी गई। ये तो सारे स्कॉलर्स है ना, इनको थोड़ा पता है यूपीएससी क्या होता है, इन्होंने तो बस अपनी किताब लिख दी है, दिस इज जस्ट अ थ्योरी। Okay, so these are the basic resources which you must follow. Okay, the first one is Baron Cicerelli. There is also one more book which Bhuvneshwar Ram, who achieved highest marks this year. So I did an interview with him. So he also suggested one book which is Theories and I will give you the name also, Wayne and Beaton. So Theories and Themes and Variation in Psychology. Okay, it is a title of that book. So you can follow that also. But प्राइमरी बैरन और सिसेरेली, दिस वुड सफाइस। आप या तो बैरन को फॉलो करो या आप सिसेरेली को फॉलो करो, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच इज ब्यूटीफुली गिवन इन बैरन, देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच इज ब्यूटीफुली गिवन इन सिसेरेली आल्सो। कुछ टॉपिक्स बैरन में अच्छे हैं, कुछ टॉपिक्स सिसेरेली में अच्छे हैं, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको बैरन में अच्छे मिलेंगे और कौन से टॉपिक्स आपको इसमें अच्छे मिलेंगे। जैसे सिसेरेली में आपको ये टॉपिक अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, बैरन में आपको ये टॉपिक अच्छे मिल जाएंगे। तो ये आपको पीडीएफ बाद में मिल जाएगा, इसको देख लेना बाद में, ठीक है। तो ये आपके हाईलाइट टॉपिक हो गए जो आपको बैरन और सिसेरेली से पढ़ने। ओके, अब इसके अलावा एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप द एनसीईआरटी। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 बैरन और सिसेरेली एंड पेपर 2 स्मारक सुन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन दिस ईयर सेकंड हाईएस्ट मार्क जिसके आए हैं अनुपिंदा कौर इन पेपर 2, शी सजेस्टेड टू फॉलो दिस ईपीजी पाठशाला फॉर साइकोलॉजी। एंड मानसवी शर्मा हु अचीव्ड हाईएस्ट मार्क्स लास्ट ईयर, उन्होंने भी इसको सजेस्ट किया था फॉर पेपर 2। ओके, अदर देन दिस फॉर पेपर 2 यू कैन आल्सो फॉलो वन बुक बाय अशोक सिंह, ओके एके सिंह, सॉरी एके सिंह, सोशल साइकोलॉजी। तो वो बुक भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी अगेन देयर इज वन बुक बाय एसके मिश्रा, ओके, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ पेपर 1 पेपर 2 के सोर्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगेन जैसे अगर आप क्लासेस करेंगे तो फिर इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको सिर्फ फिर बैरन और सिसेरेली को पढ़ना होगा। जैसे क्लासेस होती हैं उसमें से आपको सिर्फ बैरन और सिसेरेली पढ़ना है। बैरन और सिसेरेली में भी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ये जो टॉपिक्स हैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। ओके, सिसेरेली वाले और बैरन वाले, बाकी एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लासेस ओनली। ओके, क्लास नोट्स में आपको सब कुछ कवर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं, जैसे पॉल ब्लूम के आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो। ये भी अभी 3 to 4 days बैक एक और टॉपर है जयवानी, उनके साथ डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने इसको सजेस्ट किया था। ये रैंडम वीडियोस कभी यूट्यूब पे आपको देखना है, सो यू कैन वॉच देम, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक रिसोर्सेज आर क्लियर। पेपर 1 बैरन सिसेरेली, थीम्स एंड वेरिएशन बाय वेन एंड बीटर। स्मारक फ्रेन फॉर पेपर 2, स्मारक फ्रेन विल नॉट सफाइस इन पेपर 2 बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एनसीईआरटी फॉर पेपर 2। लेकिन पेपर 2 में आपको और भी काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, काफी सारे मटेरियल को रेफर करना पड़ेगा, दैट आई विल टेल यू स्लोली एंड स्लोली। लेकिन ये आपके बेसिक रिसोर्स हो जाएंगे। रिसर्च मेथड के लिए हो गया, ये थोड़ा सा अलग एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर्स आप कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना बैरन में और ना सिसेरेली में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल और विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और इनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मेटा मेमोरी हो गया, एआई हो गया। सो दीज टॉपिक्स यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, यू नीड टू गूगल देम, हमें गूगल करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द रिसोर्सेज, दिस इज द बुक लिस्ट। सो फार व्हाट वी हैव डन, अभी तक हमने क्या किया, साइकोलॉजी क्या होती है उसको समझा, साइकोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है ना, अलग अलग ब्रांचेस हो गई, इसकी साइंटिफिक स्टडी हो गई, माइंड बिहेवियर इनके बारे में पढ़ लिया। आफ्टर दिस
वी रिफर टू द बेसिक रिसोर्सेस। ठीक है, क्या क्या बेसिक रिसोर्सेस फॉलो कर सकते हो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब पेपर 1 पेपर 2 के रिसोर्सेस को फॉलो करने के बाद और पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इसमें, अब ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कंप्लीट साइकोलॉजी स्टडी विल बी डन इन 3 स्टेजेस। जो आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी वो 3 स्टेज में होगी। स्टेज 1, in stage 1 you will do complete reading of paper 1 and complete reading of paper 2। पेपर 1 के सारे टॉपिक पढ़े, पेपर 2 के सारे टॉपिक पढ़े। along with this you will do daily answer writing, one question on regular basis, either you can follow PYQ if you are not attending the classes, or the question will be given to you if you attend the classes। so this is stage 1 paper 1 paper 2 daily answer writing। ठीक है, स्टेज 2 में आप क्या करेंगे, इन स्टेज 2 you will do interlinkage between the topics। पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक्स को आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। तो अगर आपने सिलेबस देखा है तो क्या आपको लगा कि कुछ टॉपिक्स पेपर 1 के पेपर 2 से कनेक्टेड है, ऐसा फील हुआ? सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, अभी लाओ सिलेबस, सिलेबस है क्या, देखो कुछ लग रहा है क्या? Did you find online students also? Do you find anything connection between paper 1 and paper 2 topics? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज वन टॉपिक एटीट्यूड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, इन पेपर 1 चैप्टर है ना एटीट्यूड वाला। ओके, नाउ एटीट्यूड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट इज डायरेक्टली इंटरलिंक्ड विद द टॉपिक्स ऑफ पेपर 2। सोशल इंटीग्रेशन विल बी देयर, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। ओके, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिसेस, दीस टॉपिक्स आर इन पेपर 2, ये आपको पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। नाउ दीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। Okay, in the same way, in paper 1, you will find one topic, motivation and emotion. Okay, ठीक है, the same topic, motivation and emotion, is directly linked with work psychology। Motivation and emotion, work psychology से related। कैसे related है? Work psychology यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट कैसे करोगे, जब ये पढ़ोगे, ठीक है, तभी तो कर पाओगे मोटिवेट। ओके, इन द सेम वे एटीट्यूड चैप्टर ऑफ पेपर 1 इज लिंक विद सोशल इंटीग्रेशन, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिसेस। ठीक है, वो भी तो हमारे क्या होते हैं, एटीट्यूड फॉर्मेशन ही तो होते हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। सो दीज टॉपिक्स आर इंटरलिंक विद ईच अदर, यू विल अंडरस्टैंड देम वंस यू डू पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीटली। तो स्टेज 1 में आपने पेपर 1 पूरा पढ़ लिया, पेपर 2 पूरा पढ़ लिया। स्टेज 2 में जब आप सेकेंड बार इसको पढ़ोगे तो आप इनको इंटरलिंक करके पढ़ोगे। ठीक है, टॉपिक्स को इंटरलिंक करके पढ़ोगे, है ना। हमारे जो क्लासेस होंगी वो इंटरलिंक करके ही होंगी, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे, इन दैट यू कैन फॉलो एनी टेस्ट सीरीज, या आप अगेन टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं तो फिर आप कोई भी पीवाईक्यू इस पर लिख सकते हैं। ओके, इन लास्ट स्टेज जो स्टेज 3 होती है, स्टेज 3 में आपको अपना जो कंटेंट है उसका एनरिचमेंट करना है, अपने कंटेंट का एनरिचमेंट करना है। ठीक है, देखिए कोई भी, अगेन अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में उसकी लिमिट कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, कितना भी आप पढ़ लो, कितनी भी रिसर्च कर लो, वो कभी खत्म नहीं होगा। सेम गोस विद साइकोलॉजी। ओके, सो यू कैन ऑलवेज अपडेट योर कंटेंट, यू कैन ऑलवेज इनरिच योर कंटेंट। ओके, सो इनरिच करते वक्त यू विल फॉलो सम अदर स्टैंडर्ड बुक्स आल्सो व्हिच आई विल टेल यू, बट आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस, वो मैं आपको बताऊंगा जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ओके, सो दीज 3 स्टेज में आपका सिलेबस चलेगा। स्टेज 1 पेपर 1 पेपर 2 रीडिंग, along with this answer writing will be there। Stage 2 interlinking the topics and the test series, and stage 3 enrichment will be done with the help of some other standard books। अगर आप ये सब कर लेते हैं बिफोर प्रीलिम्स 2024-25 जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो फिर आपको साइकोलॉजी में 290 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, बस ये 3 स्टेज आपको फॉलो करनी है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज 1 में ही पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो वो इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि स्टेज 1 में अभी आपने पढ़ा नहीं है इतना। नाउ इफ यू फोकस ऑन पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आर मेड बाय यूपीएससी, so they are very standard questions, so they have already interlinked topics of paper 1 and paper 2 and then they are making PYQ। okay, लेकिन अगर आप अभी तक आपने इंटरलिंक पढ़ा ही नहीं है, so how you will be able to attempt the PYQ?
इन द स्टेज 1। जब तक इंटरलिंक करके समझ में नहीं आएगा तब तक पीवाईक्यू को करने में दिक्कत आएगी। ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन इंट्रोडक्शन चैप्टर इन पीवाईक्यू व्हिच हैज लिंकेज विद पर्सनालिटी, व्हिच हैज लिंकेज विद पेपर 2। ठीक है, तो जब तक वो इंटरलिंकेज नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी, है ना। तो ये 3 स्टेज में आपको पूरी अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो अगर आप ये क्लास में फॉलो करेंगे तो ये शेड्यूल पूरा है। दिस आई विल शो यू आफ्टर सम टाइम, तो वो शेड्यूल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आई चीजें अभी तक, रिसोर्सेस हो गए, सब्जेक्ट मैटर हो गया, और हमें क्या स्टेज में प्रिपरेशन करनी है मैं आपको समराइज भी कर दूंगा बाद में। आफ्टर दिस पेपर 2 थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। पेपर 2 की अगर बात करेंगे, व्हाई? बिकॉज पेपर 2 नीड्स एप्लीकेशन। नाउ यू नीड टू रीड करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस। आपको मैंने मैगजीन दी है, अभी मैगजीन अब जो आपके पास में है उसमें आप देखिए, ये मैगजीन हम 3-4 साल से रिलीज कर रहे हैं। यू विल नॉट फाइंड एनी मैगजीन रिलेटेड टू साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी, नॉट इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी, ऐसे भी नहीं मिलती। बिकॉज साइकोलॉजी को लेकर वैसे ही अवेयरनेस काफी कम है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो साइकोलॉजी में कोई बात करता ही नहीं है। ऑल्दो इंडिया इज द लाइक वर्ल्ड सोसाइटल कैपिटल, सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया में लोग कमिट करते हैं, बट स्टिल देयर इज नो अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ। द बजट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ इज ओनली अबाउट 990 करोड़ रुपीस। ठीक है, इतने सारे लोग सुसाइड करते हैं इंडिया के अंदर ड्यू टू मेंटल हेल्थ, बट स्टिल द बजट इज ओनली 990 करोड़। इट इज इवन लेस देन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ अ जवान मूवी। उसका 1100 करोड़ कलेक्शन था, उससे भी कम हमारा इसका कलेक्शन है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी कम है। ओके, सो बट वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ लिंकेज विद द करंट अफेयर्स। पेपर 2 में आपको काफी सारी लिंकेज करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स के साथ में, विच विल डू विद द हेल्प ऑफ दिस मैगजीन जो आपको मिली है। वी आल्सो पब्लिश कंटेंट ऑन डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अवर टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर आपको डेली अपडेट मिलेंगी, वहां से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं, कंटेंट को कैसे कनेक्ट करते हैं पेपर 2 से, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, देखो सी दिस टॉपिक, दिस इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इसमें ना सोशल मीडिया के बारे में लिखा हुआ है। ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं। नाउ दिस आर्टिकल इज देयर इन द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड देयर आर सेवरल आर्टिकल्स ऑन रेगुलर बेसिस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ओके, अब इसमें आप देखो, जब आप सोशल मीडिया देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे यूज किया, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपका कोई दोस्त कहीं घूमने जा रहा है, ठीक है, शॉपिंग कर रहा है, वेकेशन पे जा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दोगे कि मैं तो यहाँ पर हूँ, वहां पर है। सो व्हाट विल हैपन, कंपेयर एंड डिस्पेयर एटीट्यूड विल बी देयर। ओके, तो इससे आपको क्या होगा, इसको आपको सीइंग अदर्स कपल्स ऑन हनीमून एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो ये क्या हो गया, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, जिसकी वजह से आपको सैडनेस होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे चीजों को। स्ट्रेस हमें कब होता है, स्ट्रेस हमें जब होता है जब हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते जो हमें पता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। when we lose control over the things, हमें पता है हम पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो जब हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल हट जाता है तो स्ट्रेस निकल के आता है। सेम हैपेंस विद द हेल्प इन द केस ऑफ सोशल मीडिया आल्सो। ओके, इन द सेम वे यू हैव सीन दैट व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज। अभी आप देखेंगे, सी देयर आर टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज योर रियल सेल्फ, द सेकंड वन इज योर आइडियल सेल्फ। एक आपका होता है रियल सेल्फ, एक आपका होता है आइडियल सेल्फ। देयर शुड बी कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन योर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। आपका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, योर रियल सेल्फ इज दैट you want to play, you like sports, you don't want to study, this is your reality, but your parents want you to make your doctor or any scholar, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी में आप क्या हो, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपके बाबा आपको क्या चाहते हैं, पढ़ाकू, डॉक्टर बनो या कुछ और बनो। तो रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ अलग हो गया ना, तो ये कभी काम हो ही नहीं पाएगा, इसमें हमेशा दिक्कत आएगी। सेम गोस विद द मूवी थ्री इडियट्स, जो उसमें था, बताते हैं उसको कुछ और बनना है, माँ बाप कुछ और बना रहे हैं, जो आजकल होता भी है, विच इज आल्सो द इशू। ओके, सो रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ। नाउ व्हाट हैपेंस विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया, you are somewhere else from inside, but you are showing yourself somewhere else in the social media. आप हैं कुछ और लेकिन आप सोशल मीडिया पे अपने आप को कुछ और दिखा रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इज अ प्लेस ऑफ एप्रिसिएशन। सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेस कि जहां पर आप रहोगे तो आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, वहां पर तो आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अंदर से कुछ और है, यू आर समथिंग एल्स फ्रॉम रियलिटी, एंड यू आर शोइंग योरसेल्फ समथिंग एल्स इन द सोशल मीडिया। तो आपका रियल सेल्फ अलग हो गया
आपका आइडिया सेल्फ अलग हो गया। इसकी वजह से एक बहुत खतरनाक डिसऑर्डर निकल के आता है विच इज नोन एज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ओके, योर आइडेंटिटी डिसोसिएट विथ यू, आपकी आइडेंटिटी आपसे अलग हो जाती है। जो आप अपने जो आप हैं अंदर से, दैट बिकम डिसोसिएट विथ यू। दिस इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड दिस इज सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मेजर इशू जिसकी वजह से आज के टाइम पर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो रहे हैं। ओके, सो इन दिस वे we need to connect the topics of paper 2. I hope it is clear, it is making sense. तो ऐसे हमें करना होता है। जैसे आज ही के अगर आपने द हिंदू में पढ़ा होगा, द हिंदू में एक आर्टिकल आया है कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग खत्म होती जा रही है लोगों में, बच्चों में क्वालिटी ऑफ लर्निंग खत्म हो रही है। ओके, सो इन द टाइम ऑफ कोविड 19 जब था, तो यू हैव सीन दैट सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, एवरीथिंग वाज ऑफलाइन। इवन अ किड ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ही इज आल्सो स्टडीइंग ऑनलाइन। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा होगा तो वो पढ़ पा रहा होगा? ही इज एबल टू रीड। आवर माइंड हैज सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। What you learn in the age of 10 years, you can't learn the same thing in the age of 2 years. Okay, so how a child of 1 or 2 years can learn things online? उसका अभी तक cognitive development हुआ ही नहीं है। His or her mind is not developed cognitively. Okay, तो उसको आप कैसे ऑनलाइन पढ़ाओगे तो समझ में आएगा, है ना? स्टेजेस होती है ना cognitive development की। So this, in this way, you need to connect with the topics of paper 2. Same you will see in the case of violence. Domestic violence was on rise in the COVID-19. Okay, if you can see this case, lockdown imposed by authorities in the wake of COVID-19 and one's mobility and put women in abusive relationship. ठीक है, at extremely high risk of damage from physical, sexual and emotional abuse. You can write about this in gender psychology, paper 2. Okay, this is known as shadow pandemic. ये आप पेपर 2 में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको करंट अफेयर्स को पेपर 2 से लिंक करना होगा। दिस इज द ओनली वे। ओके, दिस इज द ओनली वे। भुवनेश्वर राम हैज रिसीव्ड 144 मार्क्स दिस ईयर इन पेपर 2। यही तरीका था वो, यही तरीके से अनुपिंदर के काफी अच्छे मार्क्स आए पेपर 2 में, क्योंकि उन्होंने लिंक किया। ठीक है ना, तो पेपर 2 में यही तरीका है, आप करंट अफेयर से लिंक कीजिए। बिकॉज फॉर पेपर 1 वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, बट फॉर पेपर 2 देयर इज अ लिमिट ऑफ रिसोर्सेज। सो आपको अपने रिसोर्सेज को खुद जनरेट करना पड़ेगा with the help of current affairs. Okay, so we conduct classes also for current affairs related to psychology, और आपको मैगजीन तो मिलेगी मिलेगी, तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज यहाँ से ये भी क्लियर हो गई। लास्ट तो चीज निकल के आती है इसमें, वो ये है व्हाट इज द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन अदर सब्जेक्ट। साइकोलॉजी का यूज कहां पर होता है? तो अगेन वी हैव डन वन एनालिसिस, सो वी आर टेलिंग एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है, तो अपन ने भी साइंटिफिक स्टडी की है, फैक्ट को देखा है और उसको देखकर ही बताया है। एथिक्स के आप टॉपिक देखिए और वहां पे क्वेश्चंस देखिए। दिस इज द टॉपिक ऑफ एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज। सो वी हैव वन चैप्टर, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। ओके, एटीट्यूड चैप्टर पेपर 1 में है। एप्टीट्यूड भी, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड इज देयर। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस इज आल्सो देयर। ओके, एप्लीकेशन इन केस स्टडीज, पेपर 2 तो पूरा एप्लीकेशन वाला है। ठीक है, तो ये सिलेबस एथिक्स का है, इसकी डायरेक्ट लिंकेज साइकोलॉजी से है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। ओके, नाउ वी रीड लॉट अबाउट द ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी है एक पर्सनैलिटी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 5 तो हम आराम से बता पाएंगे, हम तो करीब 15-20 पढ़ेंगे उसमें, तो यहाँ तो 5 ही बताने हैं, ये तो और आसान हो गया। ठीक है, एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। Again, values, we will lead in values, human values. Okay, discuss the ways and means to prevent non-ethical behavior in public servant. Again, you will read a lot about this concept also in psychology, कि कैसे हम किसी के behavior को change कर सकते हैं, कैसे हम किसी के behavior को modify कर सकते हैं। So again, this is very very important. Okay, in the same way, emotional intelligence is the ability to make your emotions work for you. तो EI तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीजें निकल के आती हैं। आपकी काफी सारी एप्लीकेशन आपको मिलेंगी, यू विल फाइंड लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी डायरेक्टली इन द फील्ड ऑफ एथिक्स। ओके, एंड सेम गोस विद द एसे आल्सो। सेम हमारा एसे के साथ भी जाएगा। ऐसे में मैं, आप देखिए 2 ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने आपको। अब देखिए, अब ऐसे में क्या होता है, आपने देखा होगा इन एसे व्हाट यू विल डू, यू नीड टू डिवाइड द टॉपिक्स इनटू डिफरेंट फील्ड। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू राइट द एसे, यू डिवाइड द टॉपिक इन सोशल डायमेंशन, ओके, इकोनॉमिकल डायमेंशन, political dimension, ठीक है, geographical dimension. So why not to divide one essay into psychological dimension?
है ना, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम अलग अलग डोमेन में अगर उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी उसमें ऐड कर दें। आपको 6-7 पेज का सिलेबस लिखना है, तो जब सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाला एक सोशल डायमेंशन लिख रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाला एक इकोनॉमिक डायमेंशन लिख रहा है, तो हम भी तो एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन लिख सकते हैं। Okay, so in this way also we can also connect psychology in the essay. We can also take the advantage of psychology in the field of essay. ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारी इसकी एप्लीकेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारी सारी चीजें हो जाती हैं कैसे हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। आई जस्ट समराइज ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, आपको माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को कैसे किया जाता है उसको पूरा इवॉल्व करना है। ठीक है, आप पेपर 1 में देखेंगे हमारे एटीट्यूड, वो भी क्या हो गया, बिहेवियर हो गया एक तरीके का, आप क्या कर रहे हो सोसाइटी के अंदर। ठीक है, पेपर 2 में सारी की सारी एप्लीकेशन, वो भी बिहेवियर ही है, तो इनकी साइंटिफिक स्टडी करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया, केयरफुल एनालिसिस किया हर एक चीज का। क्योंकि कॉमन सेंस जो होता है, कॉमन सेंस तो धोखा देता है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी धोखा नहीं देती। कॉमन सेंस हमेशा धोखा देते हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडी धोखा नहीं देती। ओके, कॉमन सेंस हमेशा साइंटिफिक नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है, वो मोस्टली आपको करेक्ट ही मिलेगी सब जगह पर। ठीक है ना। ओके, तो ये हमको कैसे किया जाता है, हाउ दिस केयरफुल एनालिसिस इज डन, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन साइकोलॉजी। उसके बाद मैंने आपको पूरी स्टेज बता दी कैसे तैयारी करनी है, रिवीजन का तरीका बताया। 3 स्टेज में आपकी तैयारी होगी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। पहली स्टेज में आप लिखेंगे रेगुलर आंसर, इन स्टेज 2 इंटरलिंकिंग द टॉपिक्स, इन स्टेज 3 what you will do the revision and enrichment part। ठीक है, सोर्सेस हमें क्लियर हो गए, दिस पीडीएफ यू विल गेट इन आफ्टर द क्लास। ये हमारी क्लास का शेड्यूल है। ओके, सो आई जस्ट वांट कि आप कम समय में जितना सीख सके उतना आपको बेटर हो, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोई हम टाइम वेस्ट करते न हो, सीधा जो इंपॉर्टेंट हम उसको देखेंगे। ठीक है, ये शेड्यूल जाएगा इसका क्लास का, इफ यू कैन सी, इन दिस वी विल रीड ऑल द चैप्टर्स। इंट्रोडक्शन, पर्सनैलिटी, लर्निंग, मेमोरी, व्हाई, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो पर्सनैलिटी बाद में है, इंट्रोडक्शन पहले है, लेकिन हम साथ में पढ़ेंगे बिकॉज दे हैव डायरेक्ट लिंकेज। इन द सेम वे लर्निंग एंड मेमोरी दे हैव डायरेक्ट लिंकेज, तो उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद साथ साथ में आपका क्या होगा, टेस्ट। ओके, इधर ही आपका क्या होगा, इधर रेगुलर आंसर राइटिंग होगी, क्लास आपने किया, आपको एक रेगुलर आंसर मिल गया, और हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट हो गया, टेस्ट 1 विल बी देयर। ओके, इन द सेम वे थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, डेवलपमेंट लैंग्वेज, रेगुलर आंसर राइटिंग एंड देन टेस्ट। और बीच में देखिए आप कुछ गैप आएगा, जैसे एक दिन टेस्ट हो गया, एक दिन का गैप आएगा, तो उस दिन डाउट सेशन होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि वीकली रिवाइज करना है, तो वीकली रिवाइज वाला काम वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो डेली वाला काम यहाँ पे हो गया, डेली आंसर राइटिंग से, वीकली वाला डाउट सेशन में हो गया, और मंथली वाला टेस्ट के थ्रू हो गया। ठीक है, ओके, इन द सेम वे देयर विल बी 4 टेस्ट फॉर पेपर 1, टेस्ट 3, टेस्ट 4। इन द सेम वे 4 टेस्ट पेपर 2 के होंगे, वर्क, वेलबींग, थेरेपी, रिहैब साथ में पढ़ेंगे, सोशल इंटीग्रेशन और ये वाले साथ में पढ़ेंगे, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4। और उसके बाद में यहाँ पर मेंशन नहीं है, 2 टेस्ट और होंगे, दे आर फुल लेंथ टेस्ट। सो इन दिस वे 8 सेक्शनल टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट विल बी देयर। 8 सेक्शनल होंगे और 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, तो टोटल 10 टेस्ट के अंदर होंगे। ठीक है ना, तो ये साइकोलॉजी का पूरा रहेगा, जिस हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है, और ये 10 तारीख से ये वाला बैच शुरू है, फ्रॉम 10th of June वी विल स्टार्ट। ठीक है, ओके, एंड दिस इज आल्सो सेकंड प्रोग्राम जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। सो दिस इज फॉर दोस्त जो साइकोलॉजी को ऑलरेडी काफी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और उनको सिर्फ आंसराइटिंग करनी है, तो उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। ओके, सो इन इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज है, ओनली टेस्ट आर देयर एंड टेस्ट 1-to-1 डिस्कशन। अगर ये लेते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, टेस्ट 1-to-1 डिस्कशन और क्लासेस आल्सो। ओके, सो ऑनलाइन बच्चों को कुछ डाउट है तो बताइए, आपसे मैं अभी बात करते हैं अपन। ठीक है, क्या दिक्कत है ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कुछ पूछना है, देन यू कैन आस्क। iPad Pro, you can connect with me later on my number. Okay, so if you like miss anything, so I was unable to view the comment right now. Okay, uh, in the next session we will focus upon this. हाँ विशेष, it is for online and offline both. Online offline both है. I just connect with iPad Pro. What is your name?
आप एक बार नाम बता दीजिए, एंड दोस्त यू हैव डाउट, एनी डाउट, यू कैन पिंग मी, यू कैन राइट डाउन माय नंबर, आई जस्ट लीव इन द कमेंट सेक्शन आल्सो. 7987 391094. Research will complete in 4 to 5 months. This is the schedule I've seen. Just ये schedule आप देखेंगे. तो ये यहाँ तक चलेगा. 30th October is the last date. Okay, so till October it will be finished. किंजल आप में से एक बार बात करना ना कॉल पे, हम कॉल पे बात करेंगे, फिर समझ में आएगी बात. ठीक ठीक है. किंजल यू प्लीज कॉल मी. तो उसी को ध्यान रखते हुए आई कीप इट बाइलिंगुअल, आई डू नॉट कीप इट इन कंप्लीटली इंग्लिश. ठीक है. एंड iPod Pro you can also call me, then we will talk about this. नेहा रिकॉर्डिंग विल बी देयर, वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स इज फॉर 2 years. 2 साल तक वैलिड रहेगा, और रिकॉर्डिंग विल बी देयर. टोटल 10 टेस्ट विल बी देयर. Recording will also be there. Recording will be there in our application. Okay, so please connect with me on my phone. Okay, right after this session, then we will talk about this. Okay, thank you.